ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर सवस्तु क्षीण समय सिमरंतु नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਰਤੀ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਅਜੰਤਾ ਦੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ। विदेशों चो फॉरन बहुत सारे आए हुए सन। वो बैठ के तस्वीर बना रहे सन। उस तस्वीर नूं देख के उहदे च कुछ लड़कियां भी सन, नौजवान भी सन, बुजुर्ग भी सन। मैं हैरान होया ये फॉरनर इतने प्रभावित ने इस तस्वीर तो, बैठे ने बना रहे ने उहदी नकल कर रहे सन। गाइड तो मैं सुभावक पुछ लिया, वो मैनू दिखा रहा सी। मैं कि इस तस्वीर दे च ऐसी की गल है, इन्ने सारे लोग प्रभावित ने। कोई जर्मनी तो आया है, कोई इंग्लैंड तो, कोई अमेरिका तो। इस तस्वीर दियां फोटोआं ले रही, बैठ के फिर तस्वीर खुद बना रहे हैं। मैनू कहने लगे ज्ञानी जी खास गल है, इनू सज्जे पासे देखो, ये तस्वीर मुस्कुरांदी हुई है ओही। इनू खब्बे पासे देखो, बड़े गंभीर रूप। इनू सामने देखो, समाधि लीन। तस्वीर एक कोई है। सज्जे देखो तो कुछ होर रूप दिखाई देंदा है, उसे दा ही। खब्बे देखो तो कुछ होर दिखाई देंदा है, सामने देखो तो होर दिखाई देंदा है। बौद्ध भिक्षुआं ने ये तस्वीरां बनाईयां सन। रूप ते एक बनाया उन्होंने, लेकिन दर्शन अनेकां हो रहे हैं। सज्जे कुछ होर दिखाई देंदा है, खब्बे कुछ होर दिखाई देंदा है, सामने कुछ होर दिखाई देंदा है। दीवार दे उत्ते चितरी हुई ये तस्वीर, ये चित्र। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी बाणी च कहंदे ने एक मूरत है ते इक्को ही मूरत। वो कोई दो तीन चार मूर्तियां नहीं है, इक्को ही है। एक मूरत अनेक दर्शन, और उस एक दे इक्को ही समय दर्शन अनेकां। एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक। उस एक ने अनेकां दर्शन अनेकां रूप बनाए हुए है वास्तविक एक। कदी गौर नाल देखो, एक मनुख दे भी कई रूप ने। तुसी आखो कि किस तरह? जेड़ा बंदा किसे दा पिता है वो फिर किसे दा पुत्र भी है,
ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਤਨੇ ਚਿਹਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਈ ਰੂਪ। ਮਨ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਰਤਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜੜਾ ਲੱਧਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ। ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੱਥੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਮਸਤਕ। ਗੁਜੜਾ ਲੱਧਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ। ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਹਾਵ ਭਾਵ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ। ਮਸਤਕ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ। ਦਿਨ ਭਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਤਨੇ ਚਿਹਰੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਤਨੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ। ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਤਨੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਧੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਹ ਭਾਵ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਖਿਨ ਮੇ ਅਵਰ ਖਿਨੇ ਮੇ ਅਵਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਛਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਛਿਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਿਨ ਮੇ ਅਵਰ ਖਿਨੇ ਮੇ ਅਵਰਾ, ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ,
ऊंचो अगम अपार। हे प्रभु तू खिन दे च कुछ होर दिखाई देना, खिन दे च कुछ होर दिखाई देना, अगम है। अगम उस तों कहंदे ने जिथे तक मन नहीं पहुंच सकता, अगोचर उसनों कहंदे ने जिथे तक ज्ञान इंद्रे भी नहीं पहुंच सकती, अखां भी नहीं पहुंच सकती, कन भी नहीं पहुंच सकते, जबान भी नहीं पहुंच सकती, हथ भी नहीं पहुंच सकते। अगम जिथे तक मन भी नहीं पहुंच सकते, भी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। अगम अगोचर खिन में अवर, खिने में अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूड़ो गूढ़ो गहर गंभीरो, पूछो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो। इत्थे एक गल नोट कर लेनी, परिवार दे संबंध पूर्वले आउंदे ने। पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को ना सहाई। पुत्र दा संबंध, मित्र दा संबंध, भरा दा संबंध, मां बाप दा संबंध, पत्नी दा संबंध, पति दा संबंध, ये सब पूर्वले ने। कुछ ना कुछ रिश्ता पिछे सी, अगों भी चलदा है। पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को ना सहाय। ये सारे संयोग जीवन दे ते होंदे ने, अंत दे च नहीं, खत्म हो जाते। अगों फिर नवे संजोग बनते हैं, अंत दे च कोई मददगार भी नहीं आता। साध संग जो तुम्हें मिलाए, गुरु दा संजोग, सतसंग दा संजोग, ये भी पूर्वला, ये भी पूर्वला। कुछ बीज बीजे सन, वो अज फलीभूत होए ने। पूर्वला जो मैं कल कीता है, वो भी पूर्वला है। जो मैं 1 महीने पहले कीता है, वो भी पूर्वला है। जो 1 साल पहले कीता है, वो भी पूर्वला है। जो 1 जन्म पहले कीता है, वो भी पूर्वला है। अज मैनू फल मिले है कुछ, पता नहीं कल दा बीजिया होया है कि साल पहले दा बीजिया होया है, कि 10 साल पहले दा बीजिया होया है, कि पिछले जन्म दा बीजिया है। फल अज मिले है। इस वास्ते मनुख निर्णय नहीं कर सकता ये कर्म कदों कीता सी, किस वक्त कीता सी, दूर क्यों जाओ। कबीर भी कहते ने, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, क्या जानो बाबा रे। हे प्रभु मैनू नहीं कुछ पता, अज जो मेरे कोल है कि केड़ा कर्म और मैं कदों कीता सी, मैनू नहीं कुछ पता। कारण बीज अज बोंदे हां, फल अज है कोई नहीं। गैप है, विचकार समय दा अंतराल है, विचकार समय दा बहुत बड़ा गैप है। कर्म ते फल विचकार बहुत बड़ा गैप है। इस गैप करके, इस अंतराल करके पता नहीं चलता किहड़े कर्म। कबीर जैसा संत भी कहंदा मैनू नहीं कुछ समझ, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, क्या जानो बाबा रे। हे प्रभु मैं की जाना, अज जो कुछ मेरे कोल है, पता नहीं केड़ा बोया होया बीज फलीभूत होया। अज दा कीता सतसंग भी कोई पुरबले बीज दा फल है, ते अज दा बीजे होया भी फलीभूत होवेगा। कदों फलीभूत होवेगा ये परमात्मा जाने। मैं कणक अज बीज रहा ते इतना मैनू पता है, हुण 5 महीने बाद मैनू फसल मिल जाए। मैं चने अज बीज रहा ते इतना मैनू पता है 4-5 महीने बाद मैनू ये चने अनंत गुणा हो के मिल जाणगे, प्राप्त हो जाणगे। मैं अंब दा बूटा ला रहा, अजकल नर्सरी च इस तरह के बूटे मिलते पे ने जो गारंटी देंदे ने 4 साल बाद फल देगा, 5 साल बाद देगा, 6 साल बाद देगा। इस तरह के पौधे मिलन लग पे। कलमी अंब
पर मैं कर्म अज कर रहा, जीवन की धरती च बीज अज बीज रहा, फल कदों होवेगा कुछ निश्चित नहीं, कुछ भी निश्चित कतई निश्चित नहीं है। मैं जमीन दे जो बीजे है कुछ ना कुछ निश्चित है। 5 साल बाद कणक वड्डांगा, 5 साल बाद मैनू 5 महीनों बाद कणक मिल जाएगी, 5 महीनों बाद चने मिल जाएंगे। निश्चित है, कुछ ना कुछ ते अंदाजा है। कर्म मैं अज कर रहा, हुणे फल ही बहुत कदों होवेगा इहदा बोध कोई नहीं, कुछ निश्चित निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस वास्ते धार्मिक कर्म करन लग्या बहुतियां दी मायूसी बनी रहिंदी। कणक बीजण लग्या मायूसी नहीं आउंदी, 5 महीने बाद वड्डांगे फसल मिलेगी। चौल बीजण लग्या मायूसी नहीं आउंदी, चने बीजण लग्या मकई बीजण लग्या मायूसी नहीं आउंदी। 4-5 महीने बाद छलियां मिलणगियां मकई दियां। मैं अज वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा, मैं अज बाणी पढ़ रहा, फल चूंकि निश्चित कुछ नहीं है, समा निर्धारित कुछ नहीं है। इस वास्ते हर धार्मिक कर्म करदियां धार्मिक लोगों की मायूसी बनी रहिंदी। उत्थे वो उत्साह नहीं आउंदा जिहड़ा एक किसान कोल कणक बीजण लग्या हुंदा। उत्थे वो उमंग नहीं आउंदी जिथे एक जमींदार कोल जदों मकई बीजदा है ते उमंग है। 5 महीने बाद 6 महीने बाद आपां मकई वड्डनी है, छलियां तोड़नियां। कुछ निश्चित नहीं, अज दा सतसंग कदों फलीभूत होवे, निश्चित कुछ नहीं। इत्थे इस तरह भी है, अज सतसंग कीता शायद अज ही फल, अज ही हुणे जमीन दे च अज बीज बीजे हुणे फल नहीं है, ऐदा फल हुणे हो सकदा, हुणे। बाबा फरीद कहंदे भी ने, अगर अज मैनू नहीं मिल सकिया तो इहदे च मेरी ढिल है, कुछ मेरी कमजोरी है, परमात्मा की तरफों नहीं है। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजणियां मनो मचिंदनियां, ये वाशनावां जो मन नूं टिकण ही नहीं देंदियां। देखो ये जिहड़ा तन है ना, इनू भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। ये देश दे अस्थान दे भरमण करदा है, काम कार करना है, खेडना है, मकान बनाना है, कारोबार विहार चलाना है, फैक्ट्री बनानी है, तो जगह ते चाहिए। तन नू भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए। मन अस्थान दे च नहीं दौड़दा। अब सारे सियाणे मन किस दे च दौड़दा है? काल दे च दौड़दा है, समय च दौड़दा है, अस्थान दे च नहीं चाहिए। मन नू अस्थान चाहिए ही नहीं, यह अस्थान दे च नहीं दौड़दा। गहराई नाल लेना है, सुनो। मन समय दे च दौड़दा है, मन वकत दे च दौड़दा है, मन काल दे च दौड़दा है, चला जांदा है दौड़ के भविष्य दे च, आने वाले कल दे च चला जांदा है, दौड़ के गुजरे हुए कल दे च, भूतकाल दे च, बस दौड़दा ही रहिंदा है, कदी भविष्य दे च, कदी भूतकाल दे च। इहदी भज दौड़ बनी रहिंदी है। मन कर्म मैं हुण कर रहा, वाहिगुरु वाहिगुरु मैं हुण जप रहा, ते मन है किधरे भविष्य दे च, हुण है कोई नहीं। जिन्हें फल खाना है वो हुण कोई नहीं, प्रभु ते हुण फल ला रहा है, खाण वाला कोई नहीं। प्रभु ते मेरे बीजे हुए नूं हुण फलीभूत कर रहे हैं, पर जिन्हें ये रस लेना है वो ते चला गया भूतकाल दे च, वो ते चला गया भविष्य दे च। मैनू अज पाठ करन दा आनंद नहीं आया, इहदा ये मतलब नहीं अज रब ने फलीभूत नहीं कीता, अज कीता है, पर अज मैं हैगा ही नहीं सी। फल कौन खावे?
ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੋੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਪੱਕ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਤਪ ਫਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਲ। ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਲਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਫਲੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਲਮੀ ਦਸ਼ਹਿਰੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ 12 ਮਾਸ ਫਲਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੰਬ ਮਿਲਣਗੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਜਦਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਟੁਕ ਦਮ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਟਿਕ ਜਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਟਿਕ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੈ ਦਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ, ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਜਦਾ ਮਨ ਕਰ ਮਕਸੂਦ। ਜੈ ਦਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਜਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ,
सिदक नहीं है तेरा, भरोसा नहीं है, फिर इंज समझ लो तू ही मौजूद नहीं है, खुदा ते मौजूद है। सिदक कर सजदा मन कर मकसूद। मकसद जिसने फल प्राप्त करना है ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। जिस दिन भी रस ना आवे या नहीं आ रहा, कह देना मौजूद नहीं आउंदे, असी रब ते हुंदा। ये नहीं कि गुरबाणी च किसी वक्त रस आउंदा ते किसी वक्त नहीं, प्रभु दे नाम दे च वाहिगुरू दे च किसी वक्त रस आउंदा ते किसी वक्त नहीं, किसी वक्त वाहिगुरू बेरस हो जांदा, किसी वक्त बाणी बेरस हो जांदी। कई कहंदे ने अज पाठ कीता है रस आ गया, पर गैनी जी कई दफा करते हैं कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब किसी वक्त बाणी बेरस हो जाती है, रब दा नाम बेरस हो जाता है। नहीं, रस ते बनिया होंदा, तू होंदा नहीं होगा बैनी। तू अपने आप नूं मौजूद नहीं रखदा, खुदा ते मौजूद है, वो ते हर वक्त मौजूद रहिंदा है, तू मौजूद नहीं रहिंदा। और इस तरह संबंध नहीं जुड़ता। टुकदम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदा है, भुल के भी किसी को न पुछना है, पता नहीं रस क्यों नहीं आ रहा। ये गल याद रखना, रस्ते बरस रहे हैं, ऐन मूसलाधार बारिश हो रही है, मैं मौजूद नहीं, इन्नी गल मैं मौजूद नहीं तो परमात्मा ते इल्जाम आ जाएगा। वो किसी वक्त रस है, किसी वक्त बेरस है, नहीं तो बाणी ते इल्जाम आ जाएगा, किसी वक्त आनंद है, किसी वक्त दुख है, कुछ भी नहीं है। कबीर ऐसा बीज बोए बाहरें मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केल करंत। 12 महीने फलीभूत, 12 महीने ही फल लगे ने, तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं, उसे वक्त फल। वाहिगुरु 12 महीने मौजूद है, रुत दे मुताबिक नहीं, हर वक्त उपलब्ध है। रस तैनू नहीं आया, तू मौजूद नहीं है। धर्म की सारी साधना है अपने आप नू मौजूद रख। जिस जबान दे उत्ते बाणी है तो हुण कन्ना कोल अपने मन नू भी मौजूद रख। सुने, मन मौजूद नहीं आंदा। हुण मैं फिर दोहरावां, मन चला जाता है समय विच। समा है तो इक्को ही है, पर मनुख करके समय की वंड हो जाती है। अगर मनुख ना होवे तो ना कोई भूतकाल है, ना कोई भविष्य है, बस समा समा है, वक्त ते है। पर वक्त दे 3 रूप सिर्फ मनुख करके ने। मेरा कुछ गुजरिया होया समय बचपना है, मेरा कुछ भूतकाल है, मेरा कुछ भविष्य है, मेरा कुछ वर्तमान है। मेरे करके समय दे 3 रूप बन गए। हुण ते समा इक्को ही है। हुण दूसरा मैं अर्ज करा, भूतकाल दे च मन चला गया है, प्रभु तो दूर चला गया। भविष्य दे चला गया, दूर चला गया। अगर वर्तमान दे च आया है तो नेड़े, जरा नेड़े आ गया। वर्तमान नेड़े है, तदी भाई गुरदास कहंदे ने, वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। वर्तमान विच मन नूं ले आईए तो भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने, पहले ये देख लें, जो कुछ हो जाए, जो कुछ है वो कबूल कर लें, परवान कर लें। मन भावदा होवे फिर मन नूं कबूल है, मन भावदा नहीं होया फिर कबूल नहीं। होवन हार जो हो गया
ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। दुख है, सुख है, नफा है, नुकसान है, इज्जत है, बेइज्जती है, कबूल कर ले। मनुख एक नूं कबूल करदा है, एक नूं नहीं तो मन दुफाड़ हो जाता है। मन वर्तमान विच नहीं हुंदा। जो मैं चाहया सी वो अज होया नहीं, शायद भविष्य दे च होवे, मन भविष्य दे चला जांदा। जो मैं चाहता पिया हुण ते कोई नहीं, ये पहले है सी मेरे कोल, तो मन चला जाता है भूतकाल दे। जो मिलिया सी ते चला गया उन्हों याद करता है, जो नहीं मिलिया मिले भविष्य दे चला जाता है, याद करता है। यादां दे भूतकाल भविष्य। जो मिलिया होया सी चला गया उन्हों याद करता है। जो चाहते हैं मिले मन उसदे चला जाता है, ਉਹਦੀ यादां चला जाता है। भूतकाल दीयां यादां ते फिर भविष्य दी चिंता, इस तरह भटकना बनी रहती। मन अनेकां रूप अंदर बदलदा है, अनेकां तरह दीयां भावुकतावां, तो चेहरे दा रंग भी बदलदा रहंदा है। दुश्मन दी याद आ गई, अखां कुछ होर, चेहरा कुछ होर। पुत्र दी याद आ गई है, चेहरा कुछ होर। भरा दी याद आ गई, मां दी याद आ गई है, पिता दी याद आ गई है, पति दी याद आ गई है, पत्नी दी याद आ गई है, चेहरा बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। ऐने रूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अगम्मी बाणी जाप साहब विच फरमान करते ने, एक मूरत अनेक दर्शन। बड़े दर्शन ने प्रभु दे। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक। खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। ये इतने रूप क्यों ने? कलगीधर कहंदे ने किसे वहम च ना पाना, तमाशा उहदा खेल है। ए रामलीले दे च एक राम बन गया, एक्टर दूजा है नहीं सी, वो ही रावण बन गया। फिर ਉਹੀ ਰਾਵਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਨੂਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਨੂਮਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक। खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। जे हनुमान ते राम ते रावण, वो जो मुखौटे पहन रखे ने, वो जो लिबास पहन ले, वो एक पासे कर देन, अपना रंग रूप एक पासे कर लें, फिर एक कोई ना हो राम, ना हो रावण, ना हो हनुमान। बस परमात्मा इस तरह रूप बदलता है। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक। खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। धर्म दी साधना है अनेकता दे च एक नूं वेखना। जिन्हों दिखाई दे रहा है समझ लो भगत है। अनेकता दे च एक दिखाई देवे तो फिर की करना होंदा है? कहते हैं मन नूं एक कर, मन दुफाड़ है तेरा, इकागर कर, एक कर। मन एक होंदा नहीं। इस वास्ते हर वक्त अनेकता बनी रहती है। धर्म की साधना है कीर्तन दे राही, वाहिगुरु मंत्र दे राही, बाणी दे पाठ दे राही इनू एक कर। जैसे कोई अपना मन एक कर लेंदा है, अनेकता दे एक दिखाई देने लग पैंदा। ओही राम है, ओही रावण है, ओही हनुमान। जैसे कोई मन अपना एक कर लेंदा है, सारियां किरणां दे च ओही सूरज है, सारियां लहरां दे च ओही सागर है, सारे रूपां दे च ओही अरूप है, ओही अरूप। खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। ये दृष्टि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बड़ी प्रबल है। एवें नहीं कन्हैया नूं झाड़ पाई सी भी तू अधूरा काम करदा, सिर्फ पानी पिलांदा।
ਜਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਝਲਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਹੋਏ ਕੇ ਭਲੇ ਰਾਗ ਫੂਲੇ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਫੁੱਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ, इतना सुंदर, इतना सुगंधित। कहूं फूल होए के भले राग फूले, कहूं भंवर होए के भली भांत भूले, कहूं पवन होए के बहे बेग ऐसे, कहे मोह न आवे कथों ताए कैसे। किधरे मैं तेरा बहाव देखदा पिया पवन दे च, हे प्रभु, मैं किधरे तेरा ठहराव देखदा पिया पहाड़ां विच, मैं किधरे तेरा स्वप्न देखदा पिया फुल्लां विच। एक मूरत अनेक दर्शन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दृष्टि, उन्हां दी दृष्टि मैं थोड़े सामने सवैयां दे रूप विच रखां। महाराज कहंदे ने, कतहूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेत। किधरे तू बड़ा चेतन सावधान सियाणा, किधरे बिल्कुल अचेत, उक्की अचेत। और मूर्ख नूं देख के नफरत होवेगी ना, ये मूड है। लेकिन जिस दिन दृष्टि एक हो जाती है, मन एक हो जाता है, न को मूर्ख न को सियाणा, वरते सब कुछ तेरा भाणा, ये हो जाता है। कतहूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेत हो, कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होए के मांगे धन देत। प्रभु, मैं देखदा पिया किधरे हथ फैला के मंगदा पिया, बड़ा भिखारी। एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। गुरु रामदास। कतों भिखारी होए के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होए के मांग्यो धन देत हो। मंगते च भी जिन्हों प्रभु दी झलक मिले, मंगते नाल घिरना करेगा। सब तेरे चोज विडाणा। एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होए के मांग्यो धन देत। किधरे तू माड़ा मोटा दानी नहीं, महादानी, बड़ा वड्डा दान पिया करदा। दानी दे च भी किधरे व्यक्ति नूं देखोगे, घृणा भी हो सकती है, नफरत भी हो सकती है, ईर्षा भी हो सकती है, पर उहदे विच भी प्रभु नूं देखिए, फिर खेड कुछ होर बनदी। कहूं महादान होए के मांग्यो धन देत हो, कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत। किधरे तू किसे नूं हुक्मरान बना देना, राजा बना देना, फिर किधरे राजपाट सारे दा सारा खो लेंदा। इनू गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज इंज फरमान करते हैं, खिन में अवल खिने में अवरा, खिन में रंक राव को करई राव रंक कर डारे, रीते भरे भरे सख नावे, ये तां को व्यवहारे। प्रभु ये तेरा व्यवहार है, धंधा है, खालियां नू भर देना, भरियां नू खाली कर देना, यही कुछ करता रहना। तेरा तमाशा, भरदा रहना फिर खाली कर छड़ना, खाली कर देना फिर भर देना। ये भरना ते खाली करना, जन्म दे दिता फिर मरण कर देना, फिर जन्म दे देना, फिर मरण कर देना। राजा बना दिता, भिखारी बना दिता, हुण भिखारी है फिर राजा बना दिता। खिन में रंक राव को करे, बड़े बड़े चोटी दे धनाड़ मैं ना अखां नाल थोड़े ही सालां च देखे ने। पहाड़ां जिन्हां दी हस्ती सी कख होए, मैं तो कख होंदे देखे, कुछ भी नहीं। और इन्हां अखां ने देखिया जो कख सन गलियां दे, पहाड़ां वर्गे।
खिन में रंक राव को करे, राव रंक कर डारे, रीते भरे भरे सख नावे, ये तां को व्यवहारे। मैं कखां नूं पहाड़ होंदा देखिया और मैं पहाड़ां नूं कख होंदा देखिया। इन्हां अखां ने इस तरह दा देखिया। रब्बी कौतक गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने यही धंधा है उहदा। ये तां को व्यवहार है, ये उहदा धंधा है, रब दा धंधा है, यही कुछ करता रहंदा है, यही कुछ करता रहंदा। कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो, कहूं वेद रीत, कहूं तासम विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। दूसरा सुनो, कहूं जछ गंधर्व रग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर, पिसाच कहूं प्रेत। किधरे मैं देखदा तू देवतियां दा बड़ा वड्डा संगीतकार है, रागी है, गंधर्व है, जज है, पर किधरे तू किन्नर है, ना पुरुष है ना स्त्री है, किन्नर तू ही है। ना तो उसनों पुरुष बनाया, ना तो उसनों स्त्री बनाया। मनुख दिखाई दे रहा है सारे दा सारा संपूर्ण, पर एक पुरुष जैसा भी नहीं है, स्त्री जैसा भी नहीं, किन्नर है। कहूं भय किन्नर, पिसाच कहूं प्रेत। पिसाच भूत प्रेत पिसाच। चंगियां रूहां जो भटकदियां ने उन्हां नूं देवता कहंदे ने, माड़ियां जो भटकदियां ने उन्हां नूं पिसाच भूत प्रेत कहंदे ने। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। बदकिस्मती जिस चीज का बंदे नूं पता नहीं होंदा ना, उसते भी किंतु परंतु करन लग पैंदा। किसे दे प्रश्न ते मैं कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच 15 दिन बोलदा रहा। विदेश की गल है और सारा रिकॉर्ड होया, टीवी ते दिखांदे रहे। 5-7 डॉक्टर मैनू मिले, कहंदे गैनी जी इहदे नाल ते बड़ा वहम फैलेगा। ते मैं कहा फिर पहले गुरु अर्जन देव जी ते इल्जाम ला लो, आख देते हो पैन मैं ते उहदा खुलासा कीता, मैं ते उहदी व्याख्या की। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा। जमीन दे उत्ते कोई 6.5 अरब दे करीब मनुख ने ना इस वक्त, तो गुस्ताखी माओ 6.5 अरब भूत प्रेत भी मान लो। जमीन दे उत्ते इस वक्त 6.5 अरब दे करीब मनुख हो गए, इतने देवते भी मान लो। देवतियां दा वासा सतसंग दे च आउंदा है, मंदिरां च आउंदा है, मस्जिदां च आउंदा है, दरगाहां ते आउंदा है, गुरुद्वारियां च आउंदा है। भूतां प्रेतां दा वासा वैश्यालियां च आउंदा है, शराबखानियां च आउंदा है, जुए खानियां च आउंदा है। जितने जुआरी बैठे होंदे ने उतने भूत भी बैठे होंदे ने। किसे मंदिर दे जितने सतसंगी बैठे होंदे ने उतने देवते भी बैठे होंदे ने। और मैं वो पुरुष भी देखे ने जिन्हां कोल देव दृष्टि है, देव दृष्टि है, देवतियां नूं देख लैंदे ने। अद की मेरे को नहीं आए, हुण सूरत पहुंच रहे ने ज्ञानी बलविंदर सिंह, कनेडा रहिंदे हैं, चंगी भजनिक आत्मा। सियाटल दी गल है, सियाटल अमेरिका दा एक शहर है, जिथे जहाज बनते हैं उत्थे ही बनते हैं, मशहूर है वो, इसे करके वो शहर मशहूर है। जंबो बोइंग बहुत वड्डी कंपनी है बोइंग, ते ओ जहाज तरह तरह के बनाते, दुनिया देखण जांदी। उत्थे एक गुरुद्वारा है, 5-7 ट्रस्टियां ने बनाया, लड़ाई झगड़ियां तो तंग आके थां थां ते वो बनाते सन, कब्जा दूजे कर लेंदे सन विच। तो फिर उन्होंने ट्रस्ट बना के अपने कोलों खर्च करके गुरुद्वारा बनाया। जिस दिन बनया मैनू फोन किया गया, नहीं जी तुसीं सानू 1 हफ्ता दे दो किसी तरीके नाल। गए उत्थे, फिर हुण मैं कई सालों तो 1 हफ्ता उत्थे ठहरदा हुंदा, प्यार करदे ने। वो उन्होंने जिहड़ा गुरुद्वारा बनाया बिल्कुल पहाड़ दे उत्ते, अलग रमड़ीक जगह है। कई दफा मैं 2-3 दिन उंज भी रह जाता हुंदा उत्थे। मैं उन्होंने नहीं दसदा हुंदा भी मैं इत्थे रहना है, भी अज मैं जा रहा, सारा इंतजाम कर लईदा है।
फिर मैं 3-4 दिन ठहर जाना, जगह बड़ी रमरीक। कथा दे दौरान एक दिन एक सिंह उठ के आया, ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਬੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਦਾੜੇ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਲਬਲੀ ਵੀ ਮਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਿਆਟਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ 5-4, ਬਈ ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 2 ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ। ਸਟੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਟਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਨ ਉਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਖ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੌਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਵਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ, ਅਮੁਕਤ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਹਿਮੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਧੇ ਤੇ ਡਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੂਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੇਵਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੇਰਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਫਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਭਟਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਗਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ। ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਤਨ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
देवते दे कोल मन है, तन नहीं है। मन दे सब कुछ पिया, सब कुछ पिया। बार बार उसने मैनू फजर दी नमाज सुनाई और आख्या, गैनी जी चूंकि तुसी इसकी स्टडी की है तां मैं तुहाडे कोल आया, मेरा जी करदा है इत्थे मैं रोज आया करा। मैं कि रोज आवांगे, नाल दास दा उत्थे टिकाणा है। कहंदा मेरा पाठ सुनन नूं जी करदा, मैं रोज आवां। मैं करा जाया कर, कोई गल नहीं। एक दिन 2 शीशियां लैके आ गया, अतर दियां, सेंट दियां, परफ्यूम। कहने लगे घर जाके ख्याल आया मैं खाली गया, ऐ मेरी तरफों भेंट ले लो। कहंदे बाजार विच बड़ा घूमिया, बड़ा घूमिया, एक दुकान बड़ी मुश्किल नाल खुली मिली, भीड़ बड़ी सी उन्हां दे। ऐ मिलियां ने, ले लो तुसी। मैं कहा होर भी आंदे ने? बड़ा दरबार साहब दे ते हजारां आउंदे रोज मेरे जैसे। इत्थे आनंद है, इत्थे रस है। तो औखे ना होना जे 6.5 अरब दे करीब जमीन ते मनुख ने, अरबां खरबां देवते ने, फरिश्ते ने। पर सिर्फ इतना नहीं, अरबां खरबां भूत भी है गए। कई कोट भूत प्रेत सू कर मिरगार, ये गुरुद्वारियां च नहीं आउंदे, मंदिरां च नहीं आ सकते। उन्हां दे जिहड़े संस्कार ने इत्थे तालमेल नहीं बैठदा, रुकावट है। वो जाणगे शराब खानियां च, वो जाणगे जुए खानियां च, वो जाणगे वैश्यालियां च। उन्हां दा आनंद रस जो उन्हां कोल संस्कार ने उत्थे ही बनदा है, इत्थे नहीं। जिथे भजन कीर्तन कथा ज्यादा होवे उत्थे ज्यादा होंदे ने। दरबार साहब, हजूर साहब, सीसगंज साहब ऐसे अस्थान ने देवतियां नाल भरे ही रहिंदे ने। यह भी मैं अर्ज करा, फरिश्तियां नाल भरे ही रहिंदे ने। जिन्ने चिर तक उन्हां दा जन्म नहीं आउंदा, ये गुरुद्वारियां मंदिरां तो बिना होर किधरे भी नहीं जाणगे, किधरे भी नहीं जाणगे। गैनी बलविंदर सिंह इत्थे सूरत आ रहे ने, मैनू कहण लगे ज्ञानी जी भावें मैनू उन्हां ने एक पासे कीता ते मैं गिर गया, पर उन्हां दी छूह नाल मैनू आनंद बड़ा आया, रस बड़ा आया। बुजुर्ग ने 80-85 साल दे ने। दास ने कल सूरत जाना है, वो अज सूरत पहुंचणगे। फिर उन्होंने उन्हां दे कौतक दसे। हुण मेरा ध्यान ते संगत दी तरफ, तो मैं कहा ज्ञानी जी तुसी मेरे कोल अर्थ सिखदे रहे हो, पढ़दे रहे हो, पर तुहाडे कोल दिव्य दृष्टि है, साधना थोड़ी सफल हुई है, मेहनत कीती हुई। ये अखां दृश्य नूं देखदियां ने, यकीन जानो अदृश्य नूं भी देख सकदियां। दोए दोए लोचन पेखा, हो हर बिन अवर ना देखा। तो हरि ते निराकार है, कबीर कहंदे ने आपां देख रहे हैं। या ते कहो कबीर झूठ बोलदा है, गुस्ताखी माओ। अगर कबीर जैसा संत झूठ बोलदा है तो फिर दुनिया च कोई सतवादी नहीं है। यह भी मैं अर्ज करते, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो कबीर कोल पुछिए, देख रहे हो तुसी, ਇਹਦਾ सबूत? तो कबीर कहंदे जे सबूत नूं वेखण दी जांच है ते मेरियां फिर अखां ही वेख लो। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन ना जाई। मेरी अखां ही वेख लो। ये देवतियां नूं वेखदियां कि भूतां नूं वेखदियां, ये परमात्मा नूं वेखदियां कि पदार्थ नूं वेखदियां, ये रूप नूं वेखदियां कि अरूप नूं वेखदियां। मेरी अख ही सबूत है जे तुहानूं देखण दी जांच है। मैं हुणे अर्ज कीती, मन दीयां भावनावां चेहरे ते प्रगट होंदियां, अखां च प्रगट होंदियां। जिन्नू रब दिखाई देंदा होवेगा उहदी दृष्टि भी रब वर्गी होवेगी, जिन्नू अमृतमयी दृष्टि कहंदे। जिन्नू परमात्मा दिखाई देंदा है वो दृष्टि परमात्मामयी है, अमृतमयी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, समां होण लगा, कहूं जच गंधर्व उरग कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिसाच कहूं प्रेत, काहूं होय के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, काहूं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो। ए प्रभु किधरे तू हिंदू है, गुफा विच बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा है, तू ही है। पर किधरे तेनू गुफा विच बैठना चंगा ही नहीं लग्या, मुनारे ते चढ़ के बांग पिया देंदा।
कहूँ होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूँ कोब काब होए पुराण को पढ़त मत, कतहूँ कुरान को निदान जान लेत हो। किधरे तू पुराणा दा ज्ञाता है, किधरे तू कुरान दा हाफिज है, कंठ है तेनों सुनाई जाना सुनाई जाना। मैं उस बीबी को बहुत सारी कुरान सुन ली, मैं हैरान होया। आम हालत दे चो नहीं सुना सकती, वो होंदा ते सुना सकती, वो बैठा हुए ते सुना सकती। उन सिर्फ पंजाबी पढ़ी हुई, बाकी नहीं कुछ। पता नहीं कितने ने मैनू कहा ज्ञानी जी ये नाल ते वहम बदया। मैं कहा तुहाडा वहम बददा होगा, सच्चाई ते ही है, सच ते सारा संसार जे मनुखा नाल भरिया पिया, सारा संसार देवतियां नाल भी भरिया पिया, सारा संसार भूतां प्रेतां नाल भी भरिया पिया। कबीर कहंदे जद मेरी सुरत रब नाल जुड़ी तो इस कौतक नूं वेखण वास्ते आए ने कौन? सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 उजाना, कहो कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवान। 33 करोड़ देवते मेरा ये आनंद वेखण वास्ते आए ने, सारे आ गए बई एक आत्मा ने परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया, खुशी जाहिर पे कर दें। सारे आए ने मैनू मुबारकां देण, वधाइयां देण। हुण जिन्हां कोल दिव दृष्टि होएगी देख लैणगे इन्हां देवतियां दा इकट्ठ कबीर दे कोल। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 उजाना। 33 करोड़ दे 33 करोड़ आए ने, एक दो नहीं है, सारे ही आए ने। कहत कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। दो गल्लां मैं फिर अर्ज कर दियां। कोई बंदा रोगी होवे, जणा खणा उहनूं दवाई दसन लग पैंदा, भावें वो शरीर शास्त्री होवे भावें ना होवे, ते भावें दवाइयां दा भी कख ज्ञान ना होवे, ऐ लै ला ऐ लै ला ऐ लै ला। हुण शरीर च माड़ा मोटा नुक्स ते हुंदा, मैं किसे नूं नहीं दसदा, मैं कहा इहने भी दवाई दसनी है, इहने भी कुछ ना कुछ कहना। भावें कख ना आप उस दवाई नाल आप ना ठीक होया होवे, दूजिआं नूं ठीक करदा। धर्म बारे भावें कख ना जाणदा होवे, राय देण नूं तैयार नहीं। जिस चीज का पता ना होवे उस चीज बारे राय नहीं देनी चाहिए। जिस चीज का बोध ना होवे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान ध्यान नाल सुनना। कहूं जच गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं वह किन्नर, पिशाच कहूं प्रेतो, कहूं होय के हिंदू आ गायत्री को गुपद जपयो, कहूं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को बकाब होय पुराण को पढ़त मत, कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो। इतना समदृष्ट अवतारी पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो बिना लभना कठिन है। हे प्रभु तू ही कुरान दा हाफिज है, तू ही पुराणा दा ज्ञाता, तू ही गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा है, तू ही मुनारे ते चढ़ के बांग पिया देना। ऐनी समदृष्टि। कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत। किधरे ते प्रभु तू देवतियां दी महफिल दे च बैठा है, देवते ही देवते। किधरे दानवान, इत्थे दानवान तो मुराद दानी नहीं, दाना। तू दाना, बीना जड़ा शब्द आंदा ना, बीना, तू बारीक वेखण वाला है, दाना तू बहुत सियाणा है। तू दरियाओ, दाना, बीना, ये दाना शब्द फारसी का है। दाना बहुत सियाणा, बहुत सियाणा, बहुत सियाणा। कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। हे प्रभु मैं देखदा किधरे दाना बंदा इतना सियाणा पर हंकारी, बड़ा हंकारी। कुदरती गल है, पढ़ा लिखा सियाणा मनुख हंकारी होंदा ही होंदा। उहदे कोल हंकार वास्ते उसका ज्ञान होंदा है, उसकी जानकारी होंदी है। कहूं दानवान को गुमान मत देत हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। किधरे तू सारे इंद्रियां दा सुख दे देना है, किसे नूं राजा बना देना है, किधरे सब कुछ खो लेना है, सब कुछ खो लेना है।
कुछ भी नहीं आउंदा उहदे कोल। छिन में रंग राव को करी, इस तरह कर छड़दा है। कहूँ इंद्र राजा को मिलित इंद्र पदवी सी, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो। किधरे तू बड़ा भारी विचारक है, अपनी स्त्री तो बिना तू किसी होर नूं देखदा भी नहीं। किधरे बिल्कुल अविचारक है, हर वक्त पर नार दा चिंतन करदा है, दूसरे दी स्त्री दा। लोक अंदर ठाणी हर वक्त इस तरह ही करदा है, हर वक्त तेरी ये बिरती। देखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बोध किथे किथे तक जांदा है। कहूँ शस्त्र धारी, कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ मारत आहारी, कहूँ नार के निकेत हो। कहूँ देववानी, कहूँ शारदा भवानी, कहूँ मंगला मृणानी, कहूँ श्याम कहूँ सेत हो। प्रभु तू निरा देवता नहीं, तू देवी भी है। वख वख देवियां दे रूप विच भी तू विराजमान है। जे पुरुष दे अंदर ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाता है तो स्त्री च भी होंदा है। उस ज्ञान करके उहदा भी दीपक जल जाता है, वो देवी हो जाती है। पुरुष दा भी दीपक जल जाता है, वो देवता हो जाता है। महाराज कहते ने किधरे तू इस तरह देवता ते देवी बने हुए है, सब तेरे ही रूप ने, सब तेरे ही रूप। कहूँ मंगला मृणानी, कहूँ श्याम कहूँ सेत। ए प्रभु मैं देखदा किधरे तेरा रंग बिल्कुल सांवरा है ते काला है, पर किधरे तू बिल्कुल चिट्टा है ते गोरा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ऐसा कथन। गोरे जिहड़े सन अफ्रीका दे च राज करदे सन, कालियां नाल नफरत करदे सन, ते जिहड़े काले अफ्रीकन सन वो गोरियां नाल नफरत करदे सन। एक दूजे नूं दूजियां दे रंग नहीं चंगे लगदे सन। ये काला है, काले कहंदे सन, ये गोरे ने, चिट्टे ने, बरोगी ने। महाराज कहंदे तू ही है। कहूँ श्याम कहूँ सेत, कहूँ जटाधारी, कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी, कहूँ साधना करत हो। सन्यासी डंडीधारी सन्यासी, किधरे जटाधारी तू जोगी है। नफरत वासी किधरे जगह ही नहीं रही, इन्नी समदृष्टि। कहूँ जटाधारी, कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी, कहूँ साधना करत हो। कहूँ कान फारे, कहूँ डंडी होए पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। जय नहीं साधो, ऐन जिथे बैठन के जगह साफ करके कोई कीड़ा मकोड़ा ना, और बड़े ध्यान नाल चलणगे, पैरां थले कोई कीड़ी ना आ जाए। कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। कतहूँ सिपाही होए के सादत से लाहन को, कहूँ छत्री होए के और मारत हो मरत हो। किधरे सिपाही हैं, सूरवीर हैं, छत्री हैं, मरना मारना ही तू जानना, सूरवीर है। कहूँ भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो। किधरे तू ऐसा उपदेशक है, ब्रह्म ज्ञानी है। ये जो संसार दे भौतिक पदार्थ ने जिन्हां दे दिल दिमाग दे उत्ते छाए ने, तू कड्ढण दा यतन करदा है। ते पर कितना इतना तू भौतिकवादी है, इतना भौतिकवादी है, त्यागी दे मन दे अंदर भी भौतिक पदार्थां दा इतना लोभ पा देना है, वो त्यागी भी जो है भोगी बन जाता है, प्रभावित हो जाता है। कहूँ अकलंक, कहूँ मारत मयंक, कहूँ पूरन पर्यंक, कहूँ शुद्धता की सार हो। किधरे तेरे ते कोई कलंक नहीं, कोई उंगल नहीं उठा सकता भी तू ऐसा कीता सी या ऐसा बोलिया सी या ऐसी तेरी करनी है। बिल्कुल अकलंक, पर किधरे तू बड़ा कलंकित है। जने खने दी उंगली उठती है, तू यह कीता है, तू यह कीता है, तू यह कीता है, तू यह कीता है। हुण बचेगा कोई नहीं। अकलंकित ते कलंकित सब दे जिसनों एक दिखाई देंदा है, नफरत किहदे नाल करे। कहूँ अकलंक, कहूँ मारत मयंक, कहूँ पूरन पर्यंक, कहूँ शुद्धता की सार हो। कहूँ देव धर्म, कहूँ साधना के हरम, कहूँ कुत्सत को करम,
कहूँ धर्म के प्रकार हो। किधरे तेरे सारे कर्म धर्म दे अनुसार ने, देवता है, पर किधरे तेरे सारे कर्म भैड़ कुत्सत कुकर्म ही करता। एक कर्म भी ठीक नहीं। कुकर्मी ते तरस आवे ते समझ लो बंदा पूरा दयालु है। जिवें मरीज ते तरस आउंदा ना, बहुत रोगी विचारा तड़प रहा है ते उसते तरस आउंदा है। गुनाह कुकर्म की ने, मानसिक रोग ने। हुण ते थोड़े जिहा मनोविग्यानक भी मनदे पए ने, कातल डकैत चोर, ये चोर कातल डकैत नहीं ने, मानसिक रोगी ने। इन्हां दा मन ठीक नहीं, मानसिक रोगी ने। जे शरीरक रोगां दी निवृत्ति दे तरह तरह दे साधन लभे गए ने, मानसिक रोग दी निवृत्ति दा साधन प्रभु दा नाम है, सतसंग है। उन्हां नूं किसी तरीके नाल लेना चाहिए है। जे बाल्मीक जैसा बाट पार एक महान ऋषि हो सकता है, मानसिक रोग दूर हो गया, तंदुरुस्त हो गया, उसते भी तरस खाना चाहिए है। पर मनुख नफरत करके ਉਹਦੇ रोग ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਰਸ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਕੜ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਤਨੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं कहा ये 35-36 साल का रब इनू बर्दाश्त करी जाता है, वो इनू जमीन तो नहीं उठाता तो हुण इनू किवें कढीए? वो तो इनू बर्दाश्त करी जाता है। इतनी गल आखण दी देर सी, उन्हां दी भी अखां भर आईयां, कहंदे नहीं मैं नहीं कहना, ठीक है, रवे पिया, रवे पिया। आ मनजीत कौर जिहड़ी तुहानूं कथा सुणांदी है, एक दिन ये भी बहुत दुखी हुई, इतनी दुखी हुई जम्मू मेरे अगों रो पई। फिर मैं उन्होंने कहा हुण मेरी भी सीमा हो गई है, चंदन नूं बहुता रगड़ी वो भी गर्म हो जाता। मैं कि तैनूं 25 साल मैं बर्दाश्त किया है, मेरी भी सीमा, मैं रब नहीं हाँ, हुण मैं तैनूं हाथ जोड़दा, बस मेरी इतनी बर्दाश्त की सीमा सी, इस तो ज्यादा नहीं। हुण तो पहले पुरुषां नूं तंग करदा सी, नाल दे रागियां नूं, हुण तेरे हथ या तेरी जबान कौड़ी बीबियां ते भी उठ गई है, हुण तो पई जा। चला ते गया, रोंदा होया गया। मैनू कहण लगा मैनू भी हैरानगी है, तुसी अज ही मैनू कढिया, पहले क्यों नहीं कढिया? मैं कहा कढते हुण तैनू दिता है ना, मैनू दुख भी हो रहा। मैं कहा की करां, इनू कढिया जरूर है, मैं हुण नहीं रखांगा, क्योंकि सारे तेरे कोल दुखी ने, सारे ही औखे ने। तू कल्याण सिंह जैसे दरवेश बंदे नूं भी रुला दिता, उन्होंने भी औखा किया, उसनूं भी परेशान किया, जदों किसी नूं भी परेशान नहीं करता। ऐसा सहन शक्ति वाला पुरुष सारी जिंदगी जिन्हों कीर्तन करदे आओगे, तू उन्होंने भी तंग किया। पर हुण जो तू सारियां नूं तंग किया है ना, इस तो मैं तंग हाँ, ते मैं तेनों हथ जोड़दा, हुण तू जा। प्रभु तेरी रक्षा करन, तेनों कोई सही ठिकाना देन, तेनों कोई जो है सुमत देन। बाद च मैं सोचदा पिया रब ने ते अजे भी बर्दाश्त किया होया उन्होंने, तो कुछ भी नहीं निकलिया, तो कुछ भी नहीं निकलिया। इस तरह भी मैनू बार बार ख्याल आया। ऐ बीबी मनजीत कौर कहण लगी तुसी फिर बुला लेना है। मैं कहा नहीं, सारे औखे होंदे ने, सारे दुखी होंदे, सारे बेजार होंदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा जिगर है, कहंदे ने हे प्रभु किधरे तेरे सारे ही कर्म बैड़े ने, कहूं कुत्सत कुकर्म, सारे कुसत कर्म ने तेरे, एक भी ठीक नहीं। कहूं अकलंक कहूं मारत मयंक, कहूं पूरन पर्यंक, कहूं शुद्धता की सार हो, कहूं देव धर्म, कहूं साधना के हरम,
कहूँ कुत्सत कुकर्म कहूँ धर्म के प्रकार। किधरे तेरा सारा कर्म धर्म दे अनुसार है, किधरे तेरे सारे ही कर्म कुकर्म ने। कहूँ धर्म के प्रकार, कहूँ पौनहारी, कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर, कहूँ नार, कहूँ छत्रधारी, कहूँ छाला धरे छैल बारी, कहूँ छकवारी, कहूँ छल के प्रकार। एक दो होर भी सुना दे, घड़ी ते मैनू रोकदी पई है, पर एक दो मिनट। सतगुरु दी दृष्टि द्वापुर दे चली गई। गुरु गोबिंद सिंह जी, कहूँ गीत के गवैया, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया, कहूँ नर को आकार। हे प्रभु कमाल दी गल है, किधरे बड़ी मधुर तो मुरली वजाना है, बड़ा सुंदर गावना है, बड़े अच्छे ढंग नाल नृत्य कर लेना है, नच लेना है। ये दृष्टि सतगुरां दी चली गई द्वापुर दे। कहूँ गीत के गवैया, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया, कहूँ नर को आकार हो, कहूँ वेद बानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो, कहूँ बेन के बजैया, बेन मुरली, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ धेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया, कहूँ सुंदर कुमार। किधरे हे प्रभु कमाल दी गल है, तू मक्खन चोर है, मक्खन चुरा लेना। लाखन लवैया, मक्खन खाण वाला चोरी करदा। जसोदा दा सक्का पुत्र नहीं सी, मतरेई लड़का सी, तो पालदी सी ना, मां ते उहदी देवकी सी। मक्खन उपर रख लेंदी सी उच्चा। पता सी ये कृष्ण छोटा बालक रूप, इनू मक्खन बहुत चंगा लगदा है, बहुत खांदा है, ज्यादा ना खावे, उपर रख लेंदी सी। ये नटखट तबीयत दे ये अवतारी पुरुष दो तीन मुंडियां नूं थल्ले एक दूजे दे बिठा के उपर चढ़ जांदे सी। मक्खन छक लेना, बचिया कुचिया तोड़ के परे मारना। सतगुरु उसदा भी जिक्र करदे ने, किधरे तू मक्खन चुरा लेना, खांदा भी मक्खन है। किधरे गीत गाना है, किधरे मुरली वजाना है, कहूँ बेन के बजैया, किधरे गौआं चारदा, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ धेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया, कहूँ सुंदर कुमार हो। शुद्धता की शान हो, के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, निर्दोखी निरंकार। निर्जुन रूप हो, निर्जुन तू जोड़ नहीं है, जिवें साडा शरीर कईयां दा जोड़ है ना, हवा है, पानी है, अग्नि है, मिट्टी है, आकाश है, सारियां दे जोड़ नाल तन बनिया ना। निर्जुड़ तू जोड़ नहीं है, अजोड़ है, निर्जुड़ तू कई चीजां दे जोड़ नाल नहीं बनिया, तू जुड़िया होया नहीं है। असी जुड़े होया, एक तत्व भी बिखर जाए तो असी नहीं हो सकते। हवा ही ना रहे तो गए, अंदर गर्मी ठंडी हो जाए तो कह देंगे हाथ पैर ठंडे हो गए, एक अग ही ना रहे तो गए। असी जोड़ हाँ, इन्हां पंज तत्तां दा होर तरह तरह दे साजो समान दा असी जोड़ हाँ। कलगीधर पातशाह कहंदे निर्जुर रूप तू जोड़ नहीं है, कई चीजां दा तू जोड़ नहीं, तू अपने आप दे पूर्ण है। निर्जुन रूप हो के सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूप हो, के दाता महादान हो, प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया, रोग सोग के मिटैया, किदो मानी महामान हो। विद्या के विचार हो, के अदवे अविकार हो, कि सिद्धता की सूरत हो, के शुद्धता की शान हो। जो बन के जाल हो, कितने इतना खूबसूरत है, हर एक नू अपनी खूबसूरती च फसा के रख छड़दा, निरा ही जाल बनया है तू। जो बन के जाल हो, के काल हो, के काल हो, किधरे तू बड़ा भयंकर डरावना, जने खाने नू तेरे तो डर लगदा है, इन्ना भयंकर काल दा रूप। ते किधरे इतना सोना तेरी सुंदरता सारियां नू फसा के रख देंदी है, जाल बन जाती है। जो बन के जाल हो, के काल हो, के काल हो, के शत्रन को सूल हो, के मित्रन के प्राण हो। कहूँ ब्रह्मवाद, कहूँ विद्या को बिखाद। किधरे ते तू ब्रह्म दा चिंतन करदा है, ब्रह्म विचार करदा है, पर किधरे पढ़ लिख के विद्या हासिल करके वाद विवाद करदा है, लड़ाई झगड़े पिया करदा है, निकम्मे पैस मुवासे च पै जांदा है।
कहूँ ब्रह्मवाद, कहूँ विद्या को विघाद, कहूँ नाद को नानाद, कहूँ पूरन भगत हो, कहूँ वेद रीत, कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत ओ अनीत, कहूँ ज्वाला सी जगत हो, पूरन प्रताप कहूँ एकांती को जाप कहूँ, ताप को अताप कहूँ जोग ते डिगत हो, कहूँ बर देत, कहूँ छल स्यों छिनाए लेत, सर्व काल सर्व ठौर एक से लगत। हर समय हर जगह हर रूप दे च ए प्रभु तू मैनू एक दिखाई देना, एक दिखाई दे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनंत सवेये। कहूँ ब्रह्मवाद, कहूँ विद्या को विखाद, कहूँ नाद को नानाद, कहूँ पूरन भगत, कहूँ वेद रीत, कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत ओ अनीत। किधरे तेरा सारा जीवन नैतिकता दे च है, किधरे बिल्कुल अनीति है। एक कर्म भी तेरा नैतिकता ते नहीं खड़े, सब कुछ अनर्थ है। कहूँ ब्रह्मवाद, कहूँ विद्या को विखाद, कहूँ नाद को नानाद, कहूँ पूरन भगत हो, कहूँ वेद रीत, कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत ओ अनीत, कहूँ ज्वाला सी जगत हो, पूरन प्रताप कहूँ एकांती को जाप कहूँ, ताप को अताप कहूँ जोग ते डिगत हो। किधरे बड़ा भारी जपीश्वर हैं, तपीश्वर हैं, जोगी हैं, कि किधरे तेरा जोग सारे दा सारा भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है तपीश्वर गिरावट च आ जाता है बड़ा जोगी भ्रष्ट हो जाता है। कहूँ जोग ते डिगत हो, कहूँ बर देत, कहूँ छल स्यों छिनाए लेत। किधरे तरह तरह दे वर दे के साजो समान दे के अगले नो माला माल कर लेना है, ते अगला माला माल हो के इतना फस जाता है, उहदे च रुझ जाता है, फिर तू सब कुछ उहदे कोल खो लेना है, उहदे कोल सब कुछ ले लेना है। कहूँ बर देत, कहूँ छल स्यों छिनाए लेत, सर्व काल सर्व ठौर एक से लगत हो। हे प्रभु हर समय और हर जगह तू मैनू इको ही दिखाई देना, हर जगह हर समय हर रूप दे तू मैनू एक दिखाई देना। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। हे प्रभु इन्हां अनेकां रूपां तू हर वक्त मैनू एक दिखाई देना। मैनू सारी लहरां दे सागर ही दिखाई देंदा है, मैनू सारी किरणां दे सूरज ही दिखाई देंदा है, मैनू सारे रूपां चो ओ अरूप परिपूर्ण परमात्मा दिखाई देंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ये गम्मी बाणी, अगे बहुत सारे सवैये ने, अनंत बाणी अकाल उस्तत दी बहुत लंबी चौड़ी बाणी, जिन्हों पढ़ पढ़ के बंदा बिस्माद हो जाता है भी चलांदे ते तीर कमान तलवार, इतनी सम दृष्टि, इतनी ब्रह्म दृष्टि, इतना ब्रह्म ज्ञान, इतना आनंद दा सोमा अंदरों फुटिया, इतना ज्ञान दा सागर अंदरों फुटिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे दिहाड़ा नेड़े आया, उन्हां दा पुरब नेड़े आ रहा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज महरामत करन, बख्शिश करन, जीवन दा अंत होवे, ये सारा ज्ञान, ये सारा रस, ये सारे रूपां च वो सानू अरूप दिखाई देवे, ताकि संसार ते आया सफल हो जाए। काफी समा हो गया, कोशिश ते मैं करदा सी छोड़ा छोड़ा, फिर अकाल उस्तति मैनू खिंची गई भी नहीं, ऐ सवैया भी ऐ सवैया। सतगुर दी बाणी बड़ी मिठी, बड़ी मधुर, बड़ी आनंदपूर्वक सी। साहिब रहमत करन अज शाम दी हाजरी ते कल सवेरे दी हाजरी भर के आप तो छुट्टियां लवांगे। सारियां दा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।